शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জ স্টেট ব্যাংকের শাখায় করোনায় আক্রান্ত হলেন 9 জন ব্যাংক কর্মী। এসবিআই ব্যাংকের এক কর্মচারীর মাও করোনায় আক্রান্ত। আসানসোল পুর নিগমের তরফে স্যানিটাইজ করিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হলো ব্যাংক। ঘটনা ঘিরে নতুন করে করোনা আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহর জুড়ে। ইসিলের বাসডার শিপির কলিয়ারিতে দুর্ঘটনার শিকার 11 জন খনি শ্রমিক। খনিতে নামার সময় 25 ফিট উচ্চতা থেকে দ্রুত গতিতে মাটি ছোঁয় ডুলিতে, ফলে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন ডুলিতে থাকা শ্রমিকরা। দুর্গাপুর থেকে আসানসোল পর্যন্ত পানাগড় বারবাড্ডা এক্সপ্রেস হাইওয়ে সার্ভিস রোডের অবস্থা অতি বেহাল। প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা। হেলদোল নেই ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চল জুড়ে করোনা আবহের মধ্যেই হলো মনসা পুজো। করোনার প্রভাব কাটানোর উদ্দেশ্যে মন্দিরে মন্দিরে হলো পূজা। সরকারি বিধি নিষেধ মেনে পুজোর অনুষ্ঠানে করা হলো কাটছিট। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে নবনিযুক্ত কোঅর্ডিনেটর হরিরাম সিংকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন কেকেসির তরফে বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হলো। নতুন পদ পাওয়ায় খুশি জাহির করলেন সংগঠনের সদস্যরা। আসানসোল রেলপার এলাকায় 3 দিন ধরে ট্রান্সফরমার বিকল থাকার পরেও হেলদোল নেই বিদ্যুৎ বন্টন বিভাগের। প্রতিবাদে বিদ্যুতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। বিধানসভা নির্বাচনের আগে কর্মীদের সক্রিয় করে তুলতে আসানসোলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিজেপির কর্মী সভা। অন্ডালের মুকুন্দপুর কলিয়ারি এলাকায় ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল বাইক আরোহীর। গুরুতর আহত আরও একজন। ঘটনার পরই বিক্ষোভ স্থানীয়দের। रानीगंज स्टेट बैंक ब्रांच के 9 कर्मचारी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एसबीआई बैंक के एक कर्मचारी की मां भी हुई कोरोना पॉजिटिव। एमसी की ओर से बैंक परिसर को किया गया सैनिटाइज। मंगलवार को बंद रहा बैंक का कामकाज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रानीगंज शाखा में पिछले 24 घंटों के दौरान एक साथ 9 कर्मी में कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इस तरह से एक साथ बैंक के शाखा में 9 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से बैंक के अन्य कर्मियों एवं बैंक उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। मंगलवार को आसनसोल नगर निगम की ओर से बैंक परिसर को सैनिटाइज कराया गया। साथ ही बैंक के लगभग 20 कर्मियों का इस दिन रानीगंज के ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच भी कराया गया। आशंका जताई जा रही है कि जांच रिपोर्ट आने पर बैंक के और कई कर्मी भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैंक की शाखा के कामकाज को बैंक उपभोक्ताओं के लिए बंद कर दिया गया। बैंक की शाखा अगले कितने दिनों तक बंद रहेगी, इस विषय को लेकर बैंक प्रबंधन की ओर से अब तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। परंतु रानीगंज स्टेट बैंक की शाखा में इतने बड़े पैमाने पर बैंक कर्मियों की कोरोना संक्रमित होने की घटना ने समूचे शहरवासियों को हिलाकर रख दिया। रानीगंज शहर मूल रूप से व्यावसायिक केंद्र होने के कारण प्रतिदिन काफी संख्या में व्यवसायियों का आना जाना बैंक में लगा ही रहता है। अब देखना ये है कि कोरोना संक्रमित हुए बैंक के कर्मचारी के संपर्क में आए कितने लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं। बताया जा रहा है कि बैंक के एक कर्मचारी की मां भी कोरोना संक्रमित है, जो रानीगंज के ही राजबाड़ी इलाके की बासिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। ইসিএলের বাঁশরা সিপিট কলিয়ারিতে দুর্ঘটনার শিকার হলেন 11 জন খনি শ্রমিক। ওই শ্রমিকদের নিয়ে ডুলিটি খনির নিচে 25 ফিট উপর থেকে দ্রুত গতিতে মাটি ছোঁয়, ফলে গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়েন 3 খনি শ্রমিক। ইসিএলের কুনুস্তরিয়া এরিয়ার বাঁশরার সিপিট কলিয়ারিতে দুর্ঘটনার শিকার হলেন 11 জন খনি শ্রমিক। ঘটনায় 3 জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে সেকেন্ড ফেজে খনিতে নামার সময় এদিন ডুলিতে চড়েন 11 জন খনি শ্রমিক। এরপরে যথারীতি ডুলিতে করে খনিতে নামার সময় 25 ফিট উচ্চতা থেকে অসাবধানতাবশত হার্ড ল্যান্ডিং করে ডুলিটি, অর্থাৎ 25 ফিট উচ্চতা থেকে দ্রুত গতিতে মাটি ছোঁয় ওই ডুলিটি, ফলে গুরুতরভাবে আহত হয়ে পড়েন 3 জন। তাদেরকে দুর্গাপুর মিশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 3 জনকে আসানসোলের কালনা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি 5 জনকে ভর্তি করা হয়েছে ইসিএলের বাঁশরা হাসপাতালে। ঘটনাটি নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন কলিয়ারির এজেন্ট AK সালুই। চালু হওয়ার পরে যারা অ্যাটেন্ডেন্স করেছিল ওয়ার্কার খাদে নামার আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়ার জন্য কেজে চেপেছিল। কেজে যাওয়ার পরে 11 জন লোক ছিল একটা কেজে। 11 জন লোক নিয়ে কেজটা নামার সময় 25 ফুট মতন উপর থেকে ওটা যেটা শিডিউল জায়গায় দাঁড়াবার জায়গায় একটু বেশি জোরে হার্ড ল্যান্ডিং করে দাঁড়িয়ে গেছে এবং ওপরের টুলিটা সামান্য ওপরে উঠে গেছে। তা সেই হার্ড ল্যান্ডিংয়ের জোরে ধাক্কা লেগে জার্কিংয়ে 6 জন 3 জন একটু সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড হয়েছে। সিরিয়াসলি মানে তাদেরকে মিশনে ফ্র্যাকচার হয়, সাসপেক্টেড ফ্র্যাকচার, তাদেরকে মিশন হসপিটাল পাঠানো হয়েছে। বাকি 3 জনকে কাল্লা হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। বাকি 5 জন আমাদের বাংলা হসপিটালে আছে, তাদের মাইনার হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, रानीगंज। दुर्गापुर से लेकर आसनसोल तक पानागढ़ बरबड्डा एक्सप्रेस हाईवे की सर्विस रोड की अवस्था बद से बदतर। आए दिन लोग हो रहे हैं दुर्घटना के शिकार। सर्विस रोड की बदतर स्थिति से वाहन चालकों की नींद उड़ी, परंतु नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब भी है मौन। पानागढ़ बरबड्डा नेशनल हाईवे 2 के सर्विस रोड की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यूं कहें कि पानागढ़ बरबड्डा नेशनल हाईवे की सर्विस रोड हर वक्त दुर्घटना को दावत देने वाली बन चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बर्धमान जिले के पानागढ़ से बरबड्डा तक जाने वाली नेशनल हाईवे 2 के सर्विस रोड की। आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर किसी भी जगह की सर्विस रोड बेहतर स्थिति में नहीं है। लोग सर्विस रोड का रुख करने से पहले डर जाते हैं। मजबूरी ना हो तो लोग सर्विस रोड का इस्तेमाल ही ना करें। आसनसोल दुर्गापुर के बीच बसे ऐतिहासिक शहर रानीगंज के सर्विस रोड की हालत बेहद खराब हो चुकी है। रानीगंज शहर में प्रवेश करने के सभी सर्विस रोड दिन प्रतिदिन इतना खराब होता चला जा रहा है कि दुर्घटना का शिकार होना आम बात है। ऐतिहासिक शहर रानीगंज में नेशनल हाईवे 2 से प्रवेश करने के 4 प्रमुख मार्ग हैं। पहला मंगलपुर, दूसरा पंजाबी मोड़, तीसरा रानीसैर एवं चौथा वासरा मोड़ है। इन चारों सर्विस रोड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। हर दिन कोई न कोई यात्री दुर्घटना का शिकार होकर बुरी तरह घायल होते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रक भी रोड के बदतर स्थिति के कारण अनियंत्रित होकर पलट जाती है। हर सर्विस रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात के वक्त इनमें पानी जमा हो जाता है और वाहन चालकों के लिए यह समझ पाना बेहद कठिन हो जाता है कि कहाँ गड्ढे हैं और इन गड्ढों की गहराई कितनी है। इस बारे में रानीगंज थाना अंतर्गत पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के प्रभारी सौमेन बैनर्जी एवं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सांगठनिक सचिव
उज्जवल मंडल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पत्र लिखकर समूचे वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इस बात का उल्लेख किया कि सर्विस रोड की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि गाड़ी चलने योग्य ही नहीं है, फिर चाहे वो 2 चक्का हो या फिर 4 चक्का। हालांकि पुलिस अधिकारी एवं चैम्बर के पदाधिकारी के पत्र लिखने के बावजूद भी सर्विस रोड की मरम्मती के लिए कोई कदम उठाए नहीं गए हैं। मंगलवार की सुबह बांसगांव मोड़ की सर्विस रोड पर एक ट्रक गड्ढे के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। काफी समय बाद पुलिस एवं क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया। इसी दिन पुनः एक पिकअप वैन भी सर्विस रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई। रास्ता इतना खराब है कि 4 दिन से आज ये हो रहा है। हम लोग का टोटो 3 बार पलटी हो चुका है। मेरा माँ को भी चोट लगा है। बार बार गाड़ी यहाँ पर पलटी हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। जैसे है वैसे चल रहा है। आज फिर से 2 गो गाड़ी फंस चुका है। एगो सुबह पलटी हो गया था और फिर एगो खराब हो चुका है। वहीं झामुरिया के तपसी स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी मंदिरा राय भी सर्विस रोड के बड़े बड़े गड्ढे का शिकार होने से नहीं बच सकी। मंदिरा राय इस दिन अपनी स्कूटी में सवार होकर वापस आ रही थी। इसी दौरान सर्विस रोड के गड्ढे के कारण अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। एक ओर उनका स्कूटी तो दूसरी ओर उनका मोबाइल और कागजात गड्ढे में भरे पानी में गिर गया। मेरा नाम मंदिरा राय, मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अच्छा, जामुरिया ब्लॉक। तपसी जामुरिया ब्लॉक। हाँ। अच्छा, आप ऑफिस कहाँ पे आपका? तपसी जामुरिया ब्लॉक। तपसी जामुरिया ब्लॉक में हेल्थ का स्टाफ। अच्छा, हेल्थ का स्टाफ मेरा तो देना पड़ेगा। हाँ। अभी आप जा रही थी? अभी मैं आ रहा था। अच्छा, आ रही थी। आते हुए आपका ऐसे एक्सीडेंट हुआ? मैंने एक्सीडेंट मतलब गड्ढा में गिर गए। गिरने के कारण आपका मोबाइल और आप खुद भी पानी में हेल्थ का डॉक्यूमेंट भी चला गया। डॉक्यूमेंट था ना, सब कुछ चला गया। इस बारे में रानीगंज शहर के युवा उद्योगपति हर्षवर्धन खैतान ने कहा कि सर्विस रोड के गड्ढे अब तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, वरना एक दिन बड़ी दुर्घटना घट सकती है। रानीगंज से दुर्गापुर की ओर जाने वाली जो बाईलेन है, जिसपे होकर हम सभी को प्राय गुजरना पड़ता है, उसकी दयनीय अवस्था, उसकी जीर्ण शीर्ण जर्जर अवस्था पर आकर्षित करना चाहता हूँ। इतना बुरा हाल है उस रोड का कि आए दिन उस पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। बरसात के दिनों में जो गड्ढे वहाँ बने हुए हैं, तालाब स्वरूप गड्ढे, उसमें टोटो, बड़ी गाड़ियाँ सभी दुर्घटना से ग्रस्त हो रही हैं। 2 दिन पहले मेरी आंख के सामने पैसेंजर लोगों से भरी एक टोटो उलट गई थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि किसी को कोई भी तरह की चोट नहीं आई, लेकिन यही अवस्था अगर चलती रही तो बड़ी दुर्घटना घटने की आशंका है। ठीक इसी प्रकार रानीगंज से की ओर जो आने वाली रोड है, जो आसनसोल से प्रभात पेट्रोल पंप के सामने से होकर रानीगंज NH2 पे आती है, उस रोड की भी अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरा प्रशासन से, मेरा और जो लोग इन मीडिया कर्मी हैं, मीडिया के लोग हैं, उनसे ये निवेदन है कि अतिशीघ्र कोई कार्रवाई अगर नहीं हुई तो बड़ी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। युवा उद्योगपति दीपक संथोलिया ने कहा कि रानीगंज में प्रवेश करने वाले सभी एंट्री पॉइंट एक ही दशा में है, ना तो स्ट्रीट लाइट और ना ही सिग्नल। रोड की अवस्था तो दुखदायक है। युवा उद्योगपति प्रदीप बाजोरिया ने सर्विस रोड की खराब स्थिति पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हर रोज सर्विस रोड से अपने निवास स्थान आना पड़ता है। आए दिन कोई न कोई सर्विस रोड के गड्ढे के कारण दुर्घटना का शिकार होता नजर आता है। सर्विस रोड की मरम्मती एवं पुनर्निर्माण की मांग पर हम सभी को आगे आकर अपनी मांग नेशनल हाईवे अथॉरिटी के समक्ष रखनी होगी। युवा उद्योगपति रोहित खैतान ने भी सर्विस रोड की बदतर स्थिति पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी अवगत कराने की जरूरत है। इसलिए हमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट करने की जरूरत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सर्विस रोड की बदतर स्थिति से हर कोई परेशान है, फिर चाहे वो उद्योगपति हो या फिर किसी सरकारी या बेसरकारी कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति, चाहे 4 चक्का वाहन चालक हो या फिर 2 चक्का वाहन चालक। कोई भी वाहन चालक सर्विस रोड की स्थिति से खुश नहीं है। वाहन चालकों को जान जोखिम में रखकर सर्विस रोड से गुजरते वक्त अपनी जान माल की रक्षा करनी पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टोल टैक्स की, तो पिछले 2 साल से बांसकोपा स्थित
नेशनल हाईवे 2 पर बने टोल प्लाजा से टैक्स लिया जाता है। टोल प्लाजा पर जब नेशनल हाईवे 2 से गुजरने वाली सभी वाहनों से टोल टैक्स लिया जा रहा है, फिर क्यों नेशनल हाईवे अथॉरिटी बरबड्डा से पानागढ़ तक अधूरे पड़े नेशनल हाईवे के काम को पूरा क्यों नहीं कर रही है? क्यों ओवरब्रिज और सर्विस रोड के निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा है? ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, जामुरिया समेत समूचे शिल्पांचल में मां मनसा की गई पूजा अर्चना। मां मनसा की पूजा में भी रहा कोरोना वायरस का प्रभाव। नहीं हो पाया भजन, कीर्तन एवं जागरण का आयोजन, किंतु मां मनसा की आराधना में जुटे रहे भक्तगण। कोरोना वायरस संक्रमण से फैली विश्वव्यापी महामारी का प्रभाव लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक उम्मीदों एवं परंपराओं पर बेहद बुरा असर डाल रहा है और भारत जैसे देश जहां सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं को काफी महत्वता एवं आस्था के साथ पालन किया जाता है, किंतु कोरोना वायरस के विश्वव्यापी संक्रमण ने हमारी सामाजिक एवं धार्मिक परंपरा को एक ऐतिहासिक झटका दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जितने भी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, वो सभी बेहद सादगी तरीके से किए गए हैं। फिर चाहे मामला बंगला नववर्ष का हो या फिर रामनवमी की, बेहद सादगी से इन दोनों उत्सव को लोगों ने मनाया। लॉकडाउन के दौरान ही ईद, बकरीद, रथ उत्सव, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी सभी धार्मिक आयोजन केवल मात्र औपचारिकताओं के तहत शिल्पांचलवासी पूरे करते हुए देखे गए। देशवासी अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस भी बेहद सादगी तरीके से मनाया। राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर वर्ष समूचे शिल्पांचलवासी 15 अगस्त को धूमधाम से न केवल अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, किंतु कोरोना वायरस का संक्रमण राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर भी भारी पड़ा। सोमवार को रानीगंज, आसनसोल, दुर्गापुर, जामुरिया समेत समूचे शिल्पांचल एवं कोयलांचल में मां मनसा की पूजा भी सादगी तरीके से मनाई गई। नागों की देवी और भगवान शिव की मानस पुत्री देवी मनसा की पूजा हर साल धूमधाम के साथ की जाती है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण मनसा पूजा की रौनक फीकी रही। हर साल की तरह इस साल भी मां मनसा की पूजा अंडाल के 12 नंबर डंगाल में मनाया गया, लेकिन हर वर्ष मां मनसा की भक्ति के लिए मंदिरों में भजन, कीर्तन, जागरण का आयोजन किया जाता था, परंतु इस वर्ष कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं किया गया है। परंतु मां मनसा की पूजा को लेकर भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आराधना एवं पूजा पाठ की। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভূত আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি
রানীগঞ্জের যে কালচার ঐতিহ্য সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. কার চয়েস দেখো, তখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह को तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन कोयला खादान श्रमिक कांग्रेस की तरफ से सम्मानित किया गया। केकेएससी संगठन के लोगों ने हरिराम सिंह को नई जिम्मेदारी मिलने पर खुशी प्रकट की।
पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह को तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन कोयला खादान श्रमिक कांग्रेस की ओर से विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मंगलवार की सुबह बांसरा कोलियारी स्थित कोयला खादान श्रमिक कांग्रेस के कार्यालय में यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संगठन की ओर से नई जिम्मेदारी मिलने पर हरेराम सिंह को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें जिला के कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के जिला कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में हिंदी भाषियों को लेकर नजरिया थोड़ा बदल गया है और लोगों के मन में यही रहता है कि अगर कोई हिंदी भाषी है तो वो बीजेपी को ही वोट देगा। पिछले 2 चुनावों से ये धारणा बनी है, इसलिए हमें इस स्थिति को बदलना होगा। तृणमूल के जिला कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह ने हिंदी भाषियों से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करने की अपील की। ममता बनर्जी ने देखा कि अभी जो है पूर्वांचल में और विशेष करके पश्चिम वर्तमान में बीजेपी का प्रभाव रहा और एक हिंदी भाषी बहुत से हमारे यहाँ वर्कर हैं। हिंदी भाषियों के ऊपर एक ब्लेम है, एक शिकायत है कि हिंदी भाषी का मतलब बीजेपी, हिंदी भाषी लोग बीजेपी को वोट देते हैं। इस भ्रम को दूर करना हम लोगों को पड़ेगा और ममता बनर्जी ने हिंदी भाषियों के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है। आप देख रहे हैं आपका मेयर जितेंद्र पुजारी हिंदी भाषी, हम हिंदी भाषी हैं। रुपेश यादव युवा प्रेसिडेंट बने वो हिंदी भाषी हैं। उन्होंने 3 हिंदी भाषियों को वोट दिया है। इस अवसर पर केकेएससी के शाखा अध्यक्ष शुभजीत मंडल, सचिव अंगिरानंद हरिजन, ब्रजेश्वर मंडल, नजीर अंसारी, प्रशांत कर्मकार, अनिल कर्मकार, सुजीत हेम्ब्रम, मिलन बाध्यकर, जितेंद्र कुमार, शंकर साव विशेष रूप से उपस्थित थे। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে গেছে। গত 3 দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন আসানসোলের রেলপাড় এলাকার কয়েকশো পরিবার। এদিন বিদ্যুতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা। গত 3 দিন ধরে বিকল হয়ে রয়েছে আসানসোলের রেলপাড় এলাকার একটি ট্রান্সফরমার, যার ফলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন গোটা এলাকায়। স্থানীয়রা বারবার বিদ্যুৎ বন্টন কার্যালয়ে জানালেও সে কথাই তোয়াক্কাই করা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অবশেষে এদিন বিদ্যুতের দাবি জানিয়ে রেলপাড় এলাকার রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয়রা। যদিও পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আশ্বাস দেয় স্থানীয়দের। এক বিক্ষোভকারী বলছেন, सही नहीं है, 12 बोले हम लोग आ रहे हैं लेकिन आ नहीं रहा, खाली टाइम पास कर रहे हैं। पाड़ी से ट्रांसफार्मर भेज रहे हैं, टारी पाड़ी जा रहे हैं, 3 बजे टाइम दिया था, अभी तक गाड़ी नहीं आया। कल से काउंसिलर भी हम लोग का एरिया का नहीं आया अभी तक यहाँ पे। अच्छा, अभी आपसे हम एक चीज पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग जब बिल नहीं देते हैं तो कितना देर लगता है इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग को लाइन काटने में? पहुंच जाता है, वो लोग देरी करता है, उससे काम में देरी होता है, तुरंत पहुंच जाता है वो लोग। और अभी जब लाइन कटा हुआ है, कितने दिन से आप लोग का? बहुत परेशानी हो रहा है, कोई आई 3 दिन से लाइन नहीं है, आज 3 दिन हो गया। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল। আগামী 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কর্মীদের আরো সক্রিয় করে তুলতে এবং জনসংযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে বিজেপির পার্টি কার্যালয়ে কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছিল এদিন আসানসোলে। বারাবণী ব্লকের দমহানি বাজার এলাকায় এদিন একটি বেসরকারি প্রেক্ষাগৃহে বিজেপির দলীয় কর্মী সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মী সভায় 2021-এর বিধানসভাকে লক্ষ্য করে ভারতীয় জনতা পার্টি নিজ কর্মীদের সক্রিয় জনসংযোগ কিভাবে বাড়ানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নেতা সৌরভ সিকান্দার, ছিলেন দিলীপ দে, শিবরাম বর্মন, মদন চৌবে, বারাবণী বিধানসভার কনভেনার কৃষ্ণপদ নাথ গোস্বামী, সুজিত মণ্ডল এবং 2 মণ্ডল সভাপতি সাধন রাউত এবং রবীন সূত্রধর। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, আসানসোল।
মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হলো দুই বাইক আরোহী। অন্ডালের মুকুন্দপুর কলিয়ারি এলাকায় এদিন দুপুর নাগাদ একটি ডাম্পারের নিচে চাপা পড়ে ওই দুইজন আরোহী, যার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে একজনের, গুরুতর আহত আরও একজন আরোহী। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হলো দুই বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে এদিন দুপুর নাগাদ অন্ডালের মুকুন্দপুর কলিয়ারি এলাকায়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। জানা গিয়েছে মুকুন্দপুর কলিয়ারি এলাকায় এদিন দুপুর নাগাদ একটি ডাম্পার বিনা ইন্ডিকেটর জ্বালিয়ে টার্নিং নিচ্ছিল। ঠিক সে সময় ডাম্পারের পিছনের চাকায় পিষ্ট হয় দুজনেই। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা হাসপাতালে পাঠালে সুধন কোড়া নামের একজন বাইক আরোহীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। চন্দন কোড়া নামের অপরজন গুরুতরভাবে আহত। हमारे मसदमपुर के वासी नहीं थे, शीतलपुर के वासी थे, मसदमपुर आ रहे थे। हठात यहाँ से इस जामबाद OCP का जो ट्रांसपोर्टिंग चलता है वो ट्रांसपोर्ट हठात पुनः इंडिकेटर देके न कुछ देके आके हठात पल्सर गाड़ी को मारा, जिसमें 2 लड़के थे, जिसमें से दोनों लड़के इंजर्ड है। एक को हॉस्पिटल भेजा गया, जाते जाते उनका डेथ हो गया। वो कहाँ का रहने वाले थे? वो रहते वाले थे शीतलपुर के। क्या नाम था जो डेट किया, उनका क्या नाम? उनका नाम सुधन कोड़ा, पिताजी का नाम दिलीप कोड़ा था। जो इंजर्ड है, जो जख्मी, उसका नाम? इंजर्ड है, उसका नाम पता नहीं, उसी का चाचा का लड़का है। অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, অন্ডাল। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842।